Hi friends, so now moving to this pretty amazing questions. Now first line, char star C. So what is C? C is nothing but it's an array of pointer where each pointer is pointing to the base address of the string Facebook, Amazon, Google, Netflix. So let me first make this. So let's suppose this is your F for Facebook, this is your Amazon, Google and your Netflix. Suppose the base address starts from 100, this starts from 110, this starts from 120 and this starts from 130. So at 100 your Facebook lies, 110 Amazon 120, your Google 130 and this is I am simply assuming, right? So now what this array of pointer is doing, your array of pointer is pointing to the base address of the string Facebook, Amazon, Google, Netflix respectively. So that means your array of pointers C0, C1, C2 and C3, C0, C1, C2, C3, C0 is pointing at what? Base address of Facebook, and base address of Facebook starts from 100, Amazon starts from 110, Google starts from 120, Netflix starts from 130. Let's suppose the address is 1000, 1004, 1008 and 1012. Now next line. So this is your array. So array name is base address. So this is your C. This is C plus 1. This is C plus 2. And this is your C plus 3. Fine. Now this CP is what? Array of pointer to a pointer. Why it has been declared as an array of pointer to a pointer? Because it is containing the address of C, and C itself is a pointer. So a variable which stores the address of a pointer needs to be what? It has to be a pointer to a pointer, right? So the CP array, this array CP0, 1, 2 and 3, the CP0, CP1, 2 and 3, right? So the CP0 is containing what? Address of C plus 3, and address of C plus 3 is 1012. This is C, C plus 1, C plus 2, C plus 3. C plus 3 is 1012. C plus 2 is 1008. Then 1004 and then 1000. Let's suppose the address starts from 5000, 5004, 5008 and 5012. Right guys? Now after that your CPP is a triple star because it is containing what? CP. So that's why it is declared as 3 star, because CP is your pointer to a pointer. Therefore, in order to store the address of a pointer to a pointer, what we require a pointer to a pointer to a pointer. So it means CPP is pointing to what? CP, and CP is your nothing but name of array. So name of array means CP is 5000. So your CPP is pointing at what? It is pointing at 5000. Right. So now let's solve. Printf percentage. यहाँ पे सामने percentage लगा हुआ है, ठीक है? Plus CPP, right? So plus CPP means your CPP is pointing at 5000, right? Your CPP is pointing at 5000. So when you do plus CPP, your CPP moves to what? 5004. And star of 5004 is 1008. And star of 1000 is 120. So you are pointing here 120. So I told you if you are using percentage, जहाँ पे pointer point करता है, वहाँ से लेके end तक पूरी string print होती है, जब तक कि null नहीं है, तो first printf का आंसर क्या आ गया? Google. Right. Now moving on to the second printer. Now your CPP is pointing at 5004. पहले मैंने तुम्हें बताया जहाँ पे आपको pointer variable हो, उससे लेके right to left पूरा solve किया करो, and उसके बाद में हमें करना है +3. तो CPP कहाँ पे point करे? CPP is pointing at 5004. अगर मैं प्लस करूँगा कहाँ पे पहुँच गया? 5008. 5008 का स्टार किया है 1004. मैं आ गया 1004 पे. 1004 को डिक्रीमेंट किया, कहाँ पे आ गया? 1000 पे आ गया. 1000 का स्टार किया 100, यहाँ पे आ गया. नेक्स्ट इज printf is Facebook. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. आफ्टर दिस लाइन प्लस CP में ऐड किया, तो इससे पहले मेरा पॉइंटर आ गया था बिकॉज ऑफ प्लस CP 5004 पे. जब मैंने ये प्लस CPP किया, नहीं फेसबुक नहीं आएगा, आगे +3 भी लगा हुआ है, राइट? तो 5004 पे मैंने प्लस किया, 5008 पे आया. 5008 का स्टार किया 1004, यहाँ पे आ गया. 1004 को डिक्रीमेंट किया, कहाँ पे आ गया? 1000 पे आ गया. 1000 का स्टार किया 100, अब यहाँ पे आ गया. अब इसमें +3 लगाओ, तो +1 +2 +3 कहाँ पे आ गया? ई के एड्रेस पे आ गया. तो आंसर आएगा ई बुक.
राइट। अब तुम्हें एक चीज और चेंज करनी है, यहाँ पे जब आपने किया था प्लस प्लस CPP किया था, इसका स्टार क्या था 1004, जब 1004 को डिक्रीमेंट किया तो यहाँ पे क्या आ गया था आपका 1000 आ गया, ये नोट करके रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार ऑफ तो फर्स्ट का आंसर आया गूगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट का आंसर आया गूगल, सेकंड का आंसर आया ई बुक। नाउ थर्ड को सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या है। थर्ड क्या है, इट इज स्टार CPP -2 प्लस 3। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ स्टार स्टार CPP -2 प्लस 3, ठीक है, बिकॉज A ऑफ I क्या होता है स्टार ऑफ A प्लस I, वैसे CPP -2 क्या होगा स्टार ऑफ CPP -2। तो अभी तुम्हारा CPP कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 5008 पे पॉइंट कर रहा है, -2 मतलब तुम्हें सिर्फ दो एड्रेस पीछे जाके चेक करना है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पॉइंटर 5000 पे आ गया। अगर यहाँ पे होता CPP इज इक्वल टू CPP -2 तो पॉइंटर को मॉडिफाई करके ले आते, पॉइंटर मेरा 5000 पे है, पर अभी मैं सिंपली कह रहा हूँ CPP -2 मतलब मैं दो एड्रेस पीछे जाके चेक कर रहा हूँ, मेरा पॉइंटर यहीं पे है, मेरा पॉइंटर 5008 पे ये वैल्यू मॉडिफाई नहीं करी, मैंने यहाँ पे CPP इज इक्वल टू CPP -2 नहीं लिखा है, ठीक है, और ना मैंने यहाँ पे ये किया है दैट CPP माइनस माइनस CPP माइनस माइनस की एक्चुअल में पॉइंटर डिक्रीमेंट हो, मैं सिंपली कह रहा हूँ CPP -2 मतलब दो एड्रेस पीछे जाके चेक किया तो कहाँ पे आ गया 5000 पे आ गया, 5000 का स्टार कितना है 1012, 1012 का स्टार कितना है 130, मैं कहाँ पे आ गया, मैं सीधा यहाँ पे आ गया नेटफ्लिक्स पे, इसके एड्रेस पे आ गया, N के एड्रेस पे आ गया। अब लिखा हुआ है +3 तो +1 +2 +3 F के एड्रेस पे आ गया, तो जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट करता है वहां से लेकर एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है जब तक कि नल नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया फ्लिक्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सप्रेशन, इट इज CPP -1 +1, ठीक है, मेरा पॉइंटर 5008 पे ये डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसके बराबर हो गया स्टार ऑफ CPP -1 का होल स्टार +1, ठीक है। ये जनरल नोटेशन तुम्हें पता होना चाहिए दैट A ऑफ I J को मैं कैसे लिखता हूँ, इट इज इक्वल टू स्टार ऑफ A प्लस I प्लस J का होल स्टार, ठीक है, वैसे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, CPP -1 इज व्हाट स्टार ऑफ CPP -1 का होल स्टार +1, मेरा पॉइंटर कहाँ पे 5008 है, -1 करूंगा तो 5004 चेक करूंगा, 5004 का स्टार क्या है 1008, राइट, 1008 यहाँ पे आके दोबारा चेक कर देखो, CP मेरा पॉइंट कर रहा है 5008 माइनस मतलब एक एड्रेस पीछे चेक किया कहाँ पे आ गया 5004 पे आ गया, 5004 का स्टार किया 1008 यहाँ पे आ गया, फिर से -1 एक एड्रेस पीछे जाके चेक किया 1004 है, 1004 का स्टार किया 110 यानी अमेजन के एड्रेस पे आ गया, A के एड्रेस पे आ गया, +1 किया तो कहाँ पे आ गया M के एड्रेस पे आ गया, यहाँ से लेके जाके एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई तो आंसर आ गया मेजॉन, राइट। दोबारा रिपीट करो, मेरा पॉइंटर था 5008 -1 किया 5004 पे आया, 5004 का स्टार किया 1008 पे आया, 1008 में -1 किया 1004 पे आया, 1004 का स्टार किया कितना आया 110 आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया अमेजन के एड्रेस पे, +1 किया तो M के एड्रेस पे आ गया, तो यहाँ से लेके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई, ये दिस इज योर आंसर, दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, राइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।